Yes, sir. Okay, so last time we have discussed about speed of transverse waves and speed of longitudinal waves. And today we are going to discuss speed of sound in air. You know very well speed of sound in air is 332 meter per second. Now, what's the principle behind the propagation of sound waves? कि ये साउंड जो है कैसे प्रोपेगेट करता है, ये कैसे पता लगा? अपने आप तो नहीं रात को सोए और सुबह उठे तो सपने में दिख गया कि ये होता है, ऐसा नहीं होता, यू नो वेरी वेल। सो हमारा दोस्त सबसे पहले आता है हर जगह, आपको पता है हमारा दोस्त कौन है, आपको पता है, मैं लिखूंगा तो आपको याद आ जाएगा, न्यूटन। न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, इसने निकाला है फार्मूला। ये बोले मैं बताऊंगा आपको क्या फार्मूला है मेरा स्पीड ऑफ साउंड का। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, when sound waves, that is longitudinal waves, propagate in air, then surely compression and rarefactions are there. Now at the region of compression, what happens? Density of particle is more, and at the place of rarefaction less. So at the region of, in the region of compression, particles are very close to each other, and due to the collision between them, heat generates. And in the place of rarefaction, heat is less, it means cooling is there. And this heat which is generated in the compression, it is shifted to the rarefaction region. So temperature remains constant. Thus, according to Newton, the process is isothermal in nature. उसने isothermal मान लिया। तो देखते हैं वो सही था या गलत नहीं था, पता लगाते हैं। According to Newton, when sound waves propagates in air, then process is isothermal in nature. क्या बताई उसने? प्रोसेस आइसोथर्मल है। The heat produced in the region of compression transferred to the region of rarefaction. So temperature remains constant. राइट बच्चों? तो यहाँ एक चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन सेज दैट इट इज आइसोथर्मल इन नेचर, एंड यू नो वेरी वेल इन आइसोथर्मल टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एंड वी नो दैट एट द रीजन ऑफ कंप्रेशन हीट जनरेट। तो भैया वो हीट तो टेम्परेचर बढ़ाएगी, तो उसने बता दिया दैट हीट ट्रांसफर टू दी रेरिफेक्शन रीजन एंड सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मान लिया। देयरफॉर according to Newton, speed of sound in air is given by, क्या फार्मूला होगा आपको पता है? अंडर रूट लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, तो b अपॉन रो होता है या k अपॉन रो होता है, जो आपको पसंद हो। मैं b लिख देता हूँ, b आइसो अपॉन रो।
This is the formula. B iso means bulk modulus in isothermal process. Now we have to find the value of bulk modulus. याद है ना? This is volume elasticity also, that is change in pressure upon या stress upon strain. dp upon dv upon v माइनस भी रहता है इसमें, तो हम निकाल के देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे आएगी. सो यहीं पे करें क्या? ठीक है, यहीं करते हैं सर. दिख तो रहा है ना बराबर? यस सर, फोटो ले लो. हाँ फोटो ले लो. इसको नंबर 1 डालना. यस सर. ओके बच्चों, लिख लिया? मिटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, so we have to find now value of B iso. B iso निकालता हूं मैं. B iso निकालने के लिए, this is isothermal process. So first we have to consider isothermal process. ये isothermal process क्या है? मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, दिख रहा है ना? So from isothermal equation of state, क्या होती है isothermal equation? PV equal to constant. Okay. Now on differentiating, so differentiating तो with respect to नहीं कर रहे हैं. So first function into second function. So two functions are there. This is first function and this is second function. So we are using the formula first function into differentiation of second plus second into differentiation of first. बहुत easy है. And differentiation of constant is always 0. तो देखिए first function यानी P into differentiation of second is dV plus second function into differentiation of first dP, and constant का 0 आ गया. Okay. So P dV equal to minus V dP. So P is equal to minus V dP upon dV. So P equal to minus dP upon dV upon V. देखो ये आ गया. Stress upon strain. It means it is bulk modulus B iso. So B iso our is equal to P आ गया. कितना आ गया? B iso is equal to P. V means pressure. Pressure you know very well. H rho g or H sigma g depends upon the symbol. Therefore, from equation 1 and 2, V equal to under root B iso. B iso means P upon rho. तो मैं P की वैल्यू रख रहा हूं, देखो बच्चों, H sigma g upon rho. So maybe there is a question in your mind, sir, P तो H rho g होता है, आप H sigma g क्यों लिख रहे हो? Because rho is already taken. रो को हम पहले ही बता चुके हैं. जैसे अब किसी का नाम है दुर्वा, नाम रख दिया तो हर लड़की का नाम तो दुर्वा नहीं रखेंगे, दूसरा ही कुछ नाम रखेंगे. तो हमने दूसरा नाम रख दिया. Now substituting the values here, H means height of mercury in barometer. याद आ गया होगा आपको, 0.76 meter. Sigma means density of mercury, 13.6 into 10 to the power 3. G 9.8 होता है. And rho means density of air, 1.293 होता है. जहां तक मुझे लगता है मैंने गलत नहीं लिखा है. हाँ सही है. And if you solve it, you will get 280 meter per second. It means according to Newton, speed of sound is 280 meter per second. तो यार ये तो ठीक नहीं है यार, ठीक नहीं है ना, गलत है. There is an error, around 16% error आ रही है, because 52 meter per second difference is there. और इतनी एरर आई तो न्यूटन से पूछा ये तो एरर आ रही है क्या है, तो न्यूटन बोला, वो बेचारा बहाने बनाने लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, या बोले एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम आ गई, पर वो ठीक नहीं बता पाया. तो कई बार क्या होता है जीवन में, हम लोग
हमारे सामने सोल्यूशन होता है, लेकिन हम लोग अपने आसपास देखना ही नहीं चाहते कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। हम हमेशा ये मानते हैं कि हम ही सही हैं, बाकी तो पूरी दुनिया गलत है। ऐसा घर में होता भी है। मम्मी पापा कई बार डांटते हैं तो बच्चे सोचते हैं अरे हम ही सही हैं, हम बड़े हो जाएंगे तब हम बताएंगे कि हम सही थे। देखो हमारे मम्मी पापा हमको हमारी बात नहीं मानते, पर ऐसा नहीं होता। आप अगर आसपास देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपकी गलती क्या थी। न्यूटन ने देखा होता, थोड़ा सा सोचा होता तो वो समझ जाता कि व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। जब मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम थी तो आप कहेंगे कि हाँ सर आपने सही कहा। पर कई बार हम रिजिड हो जाते हैं, तो जिंदगी में रिजिड नहीं होना, ये आपको न्यूटन का फार्मूला सिखाता है। बी फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। इसका फोटो ले ले बेटा, ले लिया? नो सर वेट। यस सर। सो ये हमारे पास आंसर आया था। अब हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। एक्चुअल वैल्यू क्या थी? बट एक्चुअल स्पीड is 332 meter per second. So difference, how much is the difference? Difference is 52 meter per second. It means error is about 16%. About बोल रहा हूँ, पूरा 16 नहीं है। एंड इतनी ज्यादा एरर नहीं मानी जा सकती। एरर इतनी ज्यादा नहीं मानते बच्चों का भी, ये बहुत बड़ी एरर है ना। तो दिस मच एरर, इज नॉट एक्सेप्टेबल। भाई आजकल मेरे को भी वर्ड्स याद आने लगे। दिस मच एरर इज नॉट acceptable. So there is contradiction. ये कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी न्यूटन का फार्मूला सही नहीं था। नहीं था तो कैसे पता लगाएं भाई? तो हमारा दोस्त आया, उसने करेक्शन दिया, लाप्लासेस करेक्शन। और स्पीड ऑफ साउंड, मिस्टर लैप्लासिस ने करेक्शन दिया। तो इसको ले लो एक बार, तो मिटा देंगे। फोटो ले लो। यस सर। Right? So now I think everybody knows that there is an error. Error is very large. इतनी एरर नहीं मानी जा सकती। तो लाप्लासिस ने अब करेक्शन दिया और उसने बताया कि न्यूटन साहब आप क्या गलती कर रहे हैं। तो क्या गलती कर रहे हैं ये देखते हैं, न्यूटन साहब बताएंगे अभी। उसने कहा कि ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं आइसोथर्मल इन नेचर, इट इज नॉट आइसोथर्मल इन नेचर, इट इज एक्चुअली एडियाबेटिक इन नेचर। कैसी है ये? एडियाबेटिक। तो फिर पूछा गया एडियाबेटिक क्यों, न्यूटन ने भी पूछा। उसने बहुत अच्छा बताया, सुनिएगा आप, कि when sound waves propagates in air, then in the region of compression heat develops and there is a cooling in the places of or region of rarefaction. But we know very well air is a bad conductor of heat. So how heat will transfer from compression to rarefaction? इतनी बढ़िया बात बताई उसने, देखो आप। और एक और बात कही उसने कि when sound wave propagates in the air, देखो मैं बोल रहा हूं तो कितनी जल्दी जल्दी आपके पास सब पहुंच रहा है। So this process is very fast
And when this process is very fast, there is no time for the exchange of heat. तो बोले ये प्रोसेस एडियाबेटिक है. क्या है प्रोसेस? एडियाबेटिक. मतलब अगर अभी प्रूव नहीं हुआ है कि एडियाबेटिक है भी कि नहीं, पर देखते हैं हम कि सही निकलता है कि नहीं. तो लिखिए इन 1816 में, in 1816 फ्रेंच फिजिसिस्ट की स्पेलिंग क्या लिखे हैं कि साइंटिस्ट, PHYSI या CI, फिजिसिस्ट. हाँ सही लिखा, फिजिसिस्ट. सही है स्पेलिंग? जरा बता सर दो. वाई के बाद ऐसा ही आएगा और ऐसा फिर ही आएगा? CIST. हाँ यार मेरी स्पेलिंग थोड़ी ना प्रॉब्लम आती है. PHYSI. सी. चलो मैं साइंटिस्ट लिख देता हूँ. ये तो ठीक है शायद, है ना? ओके. ये भी गलत है. सही है सर. इसमें भी सी कहीं गायब हो गया है. SCINCE, साइंटिस्ट. चलो मैं ठीक कर लूंगा. इन सही है सर. 1816 फ्रेंच साइंटिस्ट लाप्लास assumed that the process of propagation of sound waves in air is not isothermal but adiabatic in nature due to following reasons. नंबर 1, पहला तो आपको पता ही है जो मैंने आपको बता दिया कि एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. दूसरा, इतना टाइम नहीं होता कि वहां पर पहुंच पाए. तो हम तीनों लिखते हैं, पुअर कंडक्टर भी लिखते हैं, टेम्परेचर भी लिखते हैं, सारा लिखते हैं. 2 ही लिखते हैं वैसे. एयर इज ए पुअर कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और इंसुलेटर भी कह सकते हैं. ठीक है. नंबर 2, the process is so fast that there is no time to exchange heat between compression and rarefaction region. 2 पॉइंट बहुत है. ठीक है ना बच्चों? तो प्रोसेस क्या होने वाली है फिर हमारी प्रोसेस होने वाली है एडियाबेटिक. तो अब हम एडियाबेटिक पे जाने वाले हैं. दिख रहा है यहाँ तक कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. यहाँ तक का ले ले बेटा. ले लिया क्या स्नैपशॉट?
Yes. Yes, sir. ओके ओके, मैं आगे चलता हूँ. Therefore, according to Laplace, V is equal to under root B ADI upon rho. उसने बताया कि B ADI होगा. तो now we have to consider adiabatic equation and find the value of B ADI निकालना पड़ेगा. So from adiabatic equation याद होगा आपको PV gamma equal to K means constant. So on differentiating again the same process, because we have to find the value of BADI यानी stress upon strain dP upon dV upon V निकालना है. So first function into differentiation of second, तो second में देखो पावर है, तो गामा into V की पावर गामा -1 into dV plus second function into differentiation of first and constant का क्या आएगा 0. तो मैं इसको यहीं रखूंगा गामा पी को, बाकी सबको उधर ले जाऊंगा. तो गामा पी V की पावर गामा -1 dV इक्वल टू माइनस V की पावर गामा इंटू dP. ठीक है बच्चों. देन गामा पी इक्वल टू माइनस V की पावर गामा dP अपॉन, इनको यहाँ ले आया, V की पावर -1 इंटू dV. सो गामा पी इक्वल टू माइनस dP, ऊपर P dP चाहिए एक्सप्रेस, इसको नीचे ले आए, तो V की पावर गामा -1 और ये नीचे आके हो गया माइनस गामा इंटू dV. गामा 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 एंड दिस इज नाउ V की पावर -1 बचा. देखिए तो गामा P इक्वल टू माइनस dP अपॉन dV एंड दिस V की पावर -1 इज अपॉन V and this is BADI. It means the value of BADI is gamma P आया, और वो गामा P नहीं लाया था. क्या लाया था वो? सॉरी, न्यूटन जी क्या लाए थे? न्यूटन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, मैं माफी चाहता हूँ, बिकॉज ही इज एक्चुअली टीचर. सो न्यूटन जी माफ कीजिएगा, मुझे गलत निकल गया. So from equation 1 and 2, V is equal to under root gamma P upon rho or under root gamma into under root P upon rho. Now gamma for air is 1.41. कितना होता है गामा फॉर एयर इज 1.41, जिसको 7/5 भी कहते हैं हम लोग. एंड दिस वैल्यू ऑलरेडी न्यूटन हैज गिवन अस. न्यूटन जी ने हमको पहले ही दे दी थी क्या, 280. अब इसको मल्टीप्लाई किया हमने, अरे सॉरी यहाँ रखूंगा. सो V इक्वल टू अंडर रूट 1.41 इंटू 280 एंड आंसर इज 332.5 मीटर पर सेकेंड. अरे दिस इज very close to the actual value, and so our Laplace's correction was correct. तो देखिए अगर न्यूटन ने जरा सा सोचा होता कि यार ये आइसोथर्मल नहीं है तो एडियाबेटिक हो सकती है, तो ही तो पढ़ते हैं बार बार प्रोसेस, तो देखो सही हो जाता ना. तो जीवन में याद रखो, एक ऑप्शन नहीं है तो दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, क्या पता वो सही रास्ता दिखा दे. Therefore, Laplace's assumption was correct
because this is very close to the actual value 330 मीटर पर सेकेंड। अच्छा लगा बच्चों आपको? नहीं भी लगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसका स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले लें। सर जो आपने वो 1.41 वैल्यू लिखी है वो गामा की है? हाँ बेटा, गामा 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 वन, गामा मीन्स एटॉमिसिटी ऑफ द गैस होती है ये। गामा फॉर एयर है 1.41, इट इज 7/5 आता है। एक्चुअली गामा इज Cp/Cv। थोड़ा सा आपका कोर्स चेंज हुआ था तो मैंने वो करवाया नहीं। सर पढ़ाई Okay. केमिस्ट्री में होगा ना, शाबाश। चलो, केमिस्ट्री वाली मैडम हमारी हेल्प कर देती है। यस सर, ले लिया स्नैपशॉट। ओके बच्चों, मिटा दूं। So now we are moving to the last portion of today's class, that is factors affecting speed of sound. कौन से फैक्टर्स होंगे जो स्पीड ऑफ साउंड को, कहीं साउंड बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, तो ये होता है या नहीं ये हमको पता लगाना है। तो होता तो है, ये बात तो पक्की है। तो हम देखते हैं। Factors affecting speed of sound, ठीक है। सो नंबर 1, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स रो। सो ये तो बहुत इजी है। क्यों इजी है प्यारे बच्चों, बताओ? अरे डेंसिटी फार्मूले में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सो वी नो V is equal to under root gamma P upon rho. So if P is constant, P means pressure is constant, gamma तो constant ही है, then V is inversely proportional to the density. It means if density increases, velocity या speed decreases. तो एक कई बार इसमें ऑक्सीजन वाला एक क्वेश्चन भी आ जाता है, जहां तक मैंने कई बार पढ़ा हुआ है। एक मिनट में देखता हूँ इसमें अगर मिल जाए मुझे। हाँ, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 टाइम्स हाइड्रोजन से होती है ज्यादा। तो नेचुरली हाइड्रोजन की वेलोसिटी स्पीड 4 टाइम्स हो जाएगी। ऑक्सीजन में अगर स्पीड जा रही है साउंड की, हम बोल रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस होगी तो और जल्दी पहुंच जाएगी। यानी आपने कहीं हाइड्रोजन गैस भर दी तो बहुत जल्दी जो है आपकी आवाज पहुंच जाएगी, राइट। सो इफ रो डिक्रीजेस देन वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ओके, फिर प्रेशर भी दिया तो प्रेशर भी लेते हैं। चलो नंबर 2, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, यहां मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स इज डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स स्पीड ऑफ ऑक्सीजन। आप फार्मूले में रखेंगे तो आ जाएगा, करेक्ट। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग दैट कि प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। Because if pressure changes, density also changes by the same amount, and so this ratio is always constant. और दूसरा तरीका भी है, V equal to under root gamma P upon rho, correct बच्चों? Now rho density is mass upon volume, so gamma PV upon m। और PV क्या है? अरे PV तो कांस्टेंट है। PV is constant, याद आया आपको? गामा इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, इट मींस V और प्रेशर के बीच में कोई रिलेशन नहीं आने वाला है यहाँ पर। सो एस गामा PV m आर कांस्टेंट,
Therefore, V is independent of pressure as if pressure changes, then density also change by same amount. So P upon rho is constant. Hence, there is no change in the speed due to pressure. ठीक है? फोटो लेना है क्या? गलत आ गया मैं. आ जाएगा. नो सर नहीं आ दिख रहा रहा है? आपको. नो सर पीछे करिए थोड़ा. पहले इधर का ले लो. यस. इफेक्ट ऑफ डेंसिटी का ले लो. यस सर. ठीक है, अभी इधर का ले लेना. यस सर. ठीक है. नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लेते हैं. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नंबर 3. What happens to the temperature? So V equal to under root gamma P upon rho. So gamma P and rho is M upon V. So it is PV. Up from equation, from perfect gas equation, PV is RT. क्या होता है PV? RT होता है प्यारे बच्चों. तो मैं रख देता हूं. Therefore, V equal to under root gamma RT upon M. ठीक है. So gamma is constant, R is constant, M is constant. So V is directly proportional to under root T as gamma R and M are constant. Therefore, V directly proportional under root T. It means if temperature is more, velocity is less. Key more. Temperature is more, velocity यानी speed of sound is also more. अब एक last बचा अपने पास. Speed of, ठीक है, लास्ट और करवा देते हैं. ये आ गया होगा आपको. इसको लिख ले आप एक बार. स्नैप लेना हो तो ले सकते हैं. Fourth, effect of ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी का क्या होता है? When humidity increases, it means water vapor increases. When water vapor increases, then density of air decreases. And when density of air decreases, speed increases. It means with humidity, speed also increases. कितना बढ़िया काम है. So as V is directly proportional to humidity, because rho is inversely proportional humidity and V is inversely proportional rho. Therefore, V inversely proportional rho directly proportional humidity. So be careful. When humidity increases, then density of air particles decreases. Because क्यों ऐसा होता है आपको पता है. डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर अराउंड होता है 0.8. कितना होता है डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर? 0.8 kg per meter cube at STP.
and dry air is 1.293. It means density of water vapor is less. So the presence of moisture increases. क्या increases? Water vapors. And so density of air decreases. Particle कम हो जाएंगे. And so speed increases. इसलिए अगर moist air है, so in moist air speed is more. And in dry air speed is less. और एक लास्ट होता है इफेक्ट ऑफ विंड. तो इफेक्ट ऑफ विंड क्या बताएं आपको, वो तो आप समझते ही हो. इफेक्ट ऑफ विंड में क्या होगा कि व्हेन विंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, then speed increases, and if it is in the opposite direction, decreases. Simple. Effect of wind. So V net या resultant is V plus VW plus minus. Plus minus लिखने का मतलब क्या हुआ? If wind velocity is in the same direction, then speed of sound increases. If in the opposite direction, speed of sound decreases. So, मेरे प्यारे बच्चों, today we have completed our which one? Wave. Newton and Laplace's correction. ये हमने कर लिया है. And next time we are going to discuss standing waves in